ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਖਾਰੀ 12 ਮਾਦ ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ ਮਨੀਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਰਕਤ ਬਿੰਦ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਭੋਜਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3.5 ਮਣ ਦੇ ਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪਕੰਡੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਔਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀਏ। ਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿੰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਵਾਨਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। तो फिर पढ़िया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, सुनिया होया मन का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि मन मनदा नहीं। धर्म की पहली साधना सुनन ते खड़ी है। सुनिए, मनिए, मन कीता। इनू उपनिषदां दे ऋषि इंज कहने, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रवण करने से ही धर्म की प्राप्ति है। इंज कहते हैं, सुनना मोह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं इस दे उत्ते 4 पौड़ियां उचारण करनियां पईयां। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। किसी ने सुनिया, सुनिया होया मन लिया, सिद्ध बन गया, नाथ बन गया। सुनिए सिद्ध पीर सुननाथ। कोई पीर बन गया, कोई संत बन गया। सुनन दी इतनी वड्डी महिमा एक पौड़ी नहीं, 4, और हर पौड़ी विच नवे तो नवे रूप दिते ने। सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोक्ष सलाहन मन। सुन सुन के कोई ब्रह्मे जैसा विद्वान बनया है, सुन सुन के ही कोई सतो गुणी विष्णु बनया है, सुन सुन के ही कोई भोला शंकर बने, शिवजी बने। सारी ये उच्च पदवियां धर्म दियां सुनन ते खड़ियां। सुनिए सत संतोख ज्ञान। किसी ने सुनिया, मन लिया, वही सत बनया, उच्चा चरण बन गया, वही संतोख बन गया, वही सबर बन गया। उस सुनन ने इतना पवित्र कर दिता है कि 68 तीरथ इस तो कुर्बान किए जा सकते, सदके किए जा सकते। फिर चौथी च कहते हैं, सुनिए सारा गुनाह कहेगा। सुनिए शेख पीर बादशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुने हाथ होवे असगाव। ये न तरे जान वाला सागर, जिन्हों अबूर करना बड़ा औखा है, एक हाथ जैसा रह जाता है सुनन नाल। मनुख अबूर कर देता है, पार हो जाता है, बहुत सागर तो पार हो जाता है। सारे पाप मिट जाते ने, सारे दुख मिट जाते ने, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। केड़ा सुनिया होया?
ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਚਰਬੀ ਬਣ ਕੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। सुनया होया अगर मने है तो सिद्ध हो जाएगा, सुनया होया अगर मने है तो संतोखी हो जाएगा, सुनया होया अगर मने है तो ये ज्ञानी हो जाएगा, सुनया होया अगर मने है तो इसके सारे दुख ते पाप नाश हो जाएगा और सदैवी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने वास्ते कबूल करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानना चाहता और मैं सुनना चाहना, जानना चाहता। इस वास्ते बड़ा निर्माण शब्द दिता गुरु नानक ने, सिख। सिख तो मुराद की मैं सीखना है, मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इस तो ज्यादा निर्माण शब्द होर कोई नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, जानना चाहता, सीखना चाहता। और ये भाव मरदे दम तक बनया रहे, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जानन नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर गौर नाल देखिए, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दी सारी बाणी अगम्य सागर मनुख नूं बड़े मुश्किल नाल किधरे 2-4 शब्दां दी जीवन भर दे किधरे समझ आ जाए ते आ जाए। फिर 10वां ग्रंथ है भाई गुरदास जी दियां वारां ने, 52 कवियां दियां रचनावां ने। कवि संतोख सिंह जी दा गुर प्रताप सूरज ग्रंथ है। इतना वड्डा खजाना है, इति कोई खोले, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। नहीं खोलिया, बहुत कुछ है। सियाणे अनुभवी पुरुष कहते हैं, कोई भी मनुख जिस मजहब दे पैदा होया है, अपने धर्म दे सारे ग्रंथां दा अध्ययन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहुत कुछ है, बड़ा पसारा है, बहुत वड्डा पसारा है। तो मैं करा इस वास्ते सतगुरु ने निर्माण शब्द दे दिता, सिख। तू सीखना है, सीखण दा भाव लैके आ, मैं सीखना है। और सीखण लई ते सुनना है, पहले सुनना है, सरोता बनना है, सुनना है। सुनिए, इस वास्ते सिख तो ज्यादा निर्माण अवस्था होर कोई नहीं, हंकारी सिख हो ही नहीं सकता। जिहड़ा ये दावा करदा मैं सब कुछ जानदा, पता है की है गुरमत में जानदा। ये कुछ भी होवे, कम से कम सिख नहीं है। सिख जो मरदे दम तक ये भावना रखे मैं सीखना है और मैं कुछ नहीं जानता। जानन नूं बहुत कुछ है, सीखण नूं बहुत कुछ है। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस वास्ते चूंकि ये युग कलयुग दे किसी युग दे काम प्रधान होंदा है, किसी दे लोभ प्रधान होंदा है। इस युग दे हंकार प्रधान है। साहिब कहते ने हौ मैं रोग मानक को दीना, ये प्रधान है, बड़ा प्रधान है। आहं मैं हाँ, दूजा नहीं है। तो हंकारी सिख नहीं हो सकता। भावें सिख दिखाई देंदा, सिख नहीं है। सिख दा ते मतलब है मैं सीखना चाहता, मैनू कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। कम से कम हे प्रभु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। कम से कम हे गुरु मैं तेरे बारे कुछ भी नहीं जानता। मैं जानना चाहता, मैं सीखना चाहता।
इतना गहरा भाव होवे तो सिख भी लेगा। बड़ा निर्माण शब्द है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, इक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानंत। इस श्लोक का खुलासा करने तो पहले मैं इतना अर्ज कर दिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी प्रचार फेरी कीर्तन दे राही आरंभ की थी। किसी नूं समझाना गा के, और गाया होया शब्द अगले नूं इतना मुतासिर कर देंदा सी, झुक जांदे सी। किसे किसे नूं विचारना। कीर्तन तो बाद धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, पंजवें गुरु नानक ने सोचा, हर मनुख दी कीर्तन तक पहुंच नहीं आती, नहीं आती, ये भी मैं अर्ज कर। तो कथा दी परंपरा चली। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले आप कथा करते सन, फिर भाई गुरदास जी ने आरंभ की। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिथे बैठ के कथा करते रहे, उन्होंने विवेक सर कहते हैं। विवेक का मतलब ही ज्ञान, ज्ञान देते रहे, कथा करते रहे। अमृतसर दे एक विवेक सर है, 5 सरोवरां दे चों, उत्थे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप कथा करते सन। इस तरह कथा की परंपरा आरंभ हुई। सिख नूं विचारां दे राहें निरंकार नाल जोड़ना, विचारां दे राहें करतार दी सूझबूझ कराने। सिख नूं अपनी विरासत दा, अपने इतिहास दा ते आले दुआले दे इतिहास दा भी बोध होवे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता। पहला ढाडी अब्दुल्ला से मुसलमान से, पहला कीर्तनिया मर्दाना से मुसलमान से। अब्दुल्ला सिख इतिहास नूं जंगी तरज दियां धुनां दे उत्ते वीर रस दे गा के संगतां दे सामने सुणांदा हुंदा सी। उस तो ये ढाडी सिंह चले। इतिहास नूं कविता दे च बयान करना। 10वें गुरु नानक दा जमाना आया, सिख नूं ਸਾਹਿਤ ਦੀ भी समझ होवे, कला दा भी बोध होवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने नाल 52 कवि रखते सन। जगह जगह कवि सम्मेलन वो करांदे सन। जद भी किसी का हिरदा प्रभु नाल जुड़ जाता है, उहदे अंदर कुछ कोमल कला प्रगट होंदी है। संगीत सब तो कोमल कला है, कविता सब तो कोमल कला है, फिर चित्र कला है, मूर्ति कला है। अवतारां दी पहचान ही कला करके आउंदी सी, बई इहदे अंदर कला कितनी है। ये 2 कला अवतार है, 4 कला अवतार है, 8 कला अवतार है, ये 16 कला अवतार, 16 कला श्री कृष्ण दे मंद है। कोई अंसा अवतार है, अंश मात्र है, कोई पूर्ण अवतार है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज कहते हैं, 16 कला संपूर्ण फलिया, अनंत कला होए ठाकर चढ़िया। वो जिहड़ा ठाकर है परमात्मा है, तो सर्व कला का ज्ञाता, वो सारे कला दा ज्ञानी है। और किसी नूं कला प्राप्त होंदी उस महान कलाकार तो प्राप्त होंदी है, उस नाल जुड़ के प्राप्त होंदी। वो जिंदा कला होंदी है। संगीत जद अंदरों जन्म लैंदा है, वो जिंदा होंदा है। जिहड़ा सिखना होंदा है, ਉਹਦੇ ਚ जिंद जान नहीं होंदी। ये भी मैच करते हैं। कविता
ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਵਿਤਾ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਉਹ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਕ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਲੋਰਾ ਅਜੰਤਾ ਦੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਜੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਭਾਵੇਂ 2000 ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਕਸ਼ੂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਧੁਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਨਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਦੇ ਝੁੱਗੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰਦਾਸ, ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਨਸੈਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ।
रोज नहीं गांदा। जिस दिन उसके अंदरों संगीत फुटदा है उस दिन गांदा है, उस दिन गांदा है। कहंदे ने उत्थे बहुत सारे साधुआं दियां कुटियां सन। वक़्त दा बादशाह पड़ोसे जाके ठहरे है, गुमनाम तरीके नाल तानसेन नाल। 3 दिन ते इंतजार किया, सबर दा पैमाना लबरेज होया, औखा होया। बई हद हो गई है, 3 दिन हो गए, और किन्ना सबर करिए। एक दिन अमृत वेले कन्ना च आवाज पई, अकबर उस कुटिया दे कोल चलिया गया। जिंदगी च पहली दफा अकबर नूं पता चलिया कि रूहानी आनंद की होता है, रूहानी रस की होता है। झुग्गी दे च आके अकबर तानसेन नूं कहंदा है, तू इस तरह कदी नहीं गाया। तेरे संगीत ने ते इतनी गहराई नाल सानू कदी नहीं छोया। पता है तानसेन ने की आख्या, बादशाह सलामत, असी गांदे हां तेरे वास्ते। ओ गांदा है बादशाहां दे बादशाह परमात्मा वास्ते, तेरे वास्ते नहीं गांदा। ओदा गाया होया ते मेरा गाया होया बराबर किस तरह होवेगा? मैं तेनों खुश करने वास्ते गाउंदा, वो परमात्मा नूं खुश करने वास्ते गाउंदा। ओदे अंदरों संगीत फुटदा है, मैं संगीत नूं जन्म देना। मैं सिखिया ते गाउंदा, वो ते एक झरने दा पानी है, फुटिया ते निकलदा है। मैं ते खूह दा पानी है, डोल नाल कढ़ना पैंदा है, मेहनत करके कढ़ना पैंदा है। वो ते झरने दा बहाव है, बराबर किस तरह हो सकता है? जद कोई उस महान कलाकार नाल जुड़ जाता है, अंदरों कविता फुटदी है, अंदरों संगीत निकलता है, तरह तरह की कला निकलती है। सारिया कला दे 2 कला बहुत कोमल बनिया गए, संगीत ते कविता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानन। एक ऐसे ने नाद, संगीत दी कोई सोच नहीं, कोई मस। वेद, रब्बी ज्ञान, रब्बी विद्या दी कोई समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं। एक ना शब्द ना सुरत, अखर का एओ ना लहंद। एक ना नाद ना वेद गे रस, रस कस ना जानन। एक ना शब्द ना सुरत, अखर सर, अखर का भयो ना लहंद। कुछ अखर दा बोध नहीं उस परमात्मा दा, कुछ संगीत दी समझ नहीं, कविता दा बोध नहीं। लेकिन कहते ने असी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हुण गुरु नानक देव जी कहते, नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गरत करन। न कविता जानदा है, न शायरी नूं जानदा है, न संगीत नूं जानदा है, न रब्बी विचार नूं जानदा है, ते फिर दावा है मैनू सब कुछ पता है। महाराज कहते ने असली खोते इन्हां नूं कहंदे। ऐसा क्या है? धन गुरु नानक देव जी। क्यों? भावक मनुख, श्रद्धालु मनुख सरोता होंदा है और कला दे नेड़े चला जाता है। ये भी महर्ज करते हैं, नेड़े चला जाता है। हकीकत है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आज दुनिया बहुत बाहर मुखी हो गई है, अंतर्मुखी होना बहुत औखा है। एक दफा मैं फिर दोहरा दें ताकि गल पूरी पकड़ दे च आ जाए। जो भोजन असी खांदे हैं उसका जिहड़ा भाग साडे अंदर रह जाता है,
ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अगर ये गहरा स्रोत है तो इसके अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा। मनुख इस अवस्था तक पहुंच सके, गुरु घर ने 4 तरह की कोशिश की थी। कीर्तन, कथा, ढाडी प्रसंगां दे राहीं इतिहास की जानकारी करा के मनुख दे अंदर जाग लानी, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कवि दरबारां नूं जन्म। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा कई कोट कवि काव विचारे, करदे ने तेरे कई विचार, कविता दे राहीं, शायरी दे राहीं। संस्कृत दा लफ्ज है ऋषि, ते ऋषि दे अर्थ ने कवि। जिन्ने भगतां दी बाणी ऋषि मुनियां दी बाणी है। ऋषि मुनि इकट्ठा शब्द क्यों कहने आ? जिन्हां दा मन चुप कर गया, मौन कर धारण कर गया ऋषि। हुण इहदे अंदरों कला फुटेगी, कुछ ना कुछ फुटेगा। भावें खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनदा है, इस कबीर दे अंदरों संगीत भी निकलेगा, गीत भी निकलेगा। भावें चौक दे च बैठ के रविदास जुतियां गंढदा है, गुस्ताखी माफ क्योंकि स्वयं अपने आप को चमार कहते हैं, तो इस चमार दे अंदरों संगीत भी फुटेगा, गीत भी फुटेगा। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। ठीक कहते ने राबिंद्र नाथ टैगोर, जिन्हों संगीत चंगा नहीं लगता, कविता चंगी नहीं लगती, कहंदा इसनूं मनुख कहण दी लोड़ की है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिमाग नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा। भावें अहले इस्लाम दे संगीत दी ममानियत है, लेकिन मुहम्मद साहब दे अंदरों कुरान दीयां आयतां निकलियां ने संगीत दे राग दे निकलियां। जद भी कोई कुरान दी तलावत कर रहा हुंदा है, यकीन जानो संगीत ते टपकदा है। जद कोई मुनारे ते चढ़ के मौलवी बांग देंदा, संगीत ते टपकदा है। अमीर खुसरो इसनूं इंज कहंदा है, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। हे प्रभु, तेरे एक नूर दी झलक मिली सी, वो ते खो गई, पर तेरी आवाज मैं सुन रहा। संगीतमयी है, गीतमयी है। तेरी आवाज गीत है, तेरी आवाज संगीत है। लफ्ज उत्थे रूह है, रूह दी आवाज गीत है, संगीत है। हे प्रभु, ये तेरी आवाज है, गीत संगीत। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक ना नाद ना भेद गे रस, रस कस ना जान। नाद दी समझ ही नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, विस्माद नाद। हे प्रभु, मैं संगीत सुन के विस्मादमयी हो जाना। आवाज दे च इतनी लयबद्धता, आवाज दे च इतनी कशिश, इतनी लयबद्धता। आवाज तरतीब दे च हो जाए, संगीत बन जाती है। अखर तरतीब दे च हो जान, कविता बन जाती है, शायरी बन जाती है। कवि नूं ऋषि आख्या गया है। ऋषि कवि है, कवि ऋषि है। अंतरा की है? ऋषि
जिहदी जिंदगी दे चानना हो गया, सूरज उदय हो गया, प्रकाश हो गया। कवि जिहदी जिंदगी चानना कदी कदी इस तरह हुंदा है जिवें अंधेरे च बिजली चमकदी है। जदों बिजली चमकदी है उस दे अंदरों भी कुछ गीत जन्म लेंदे हैं, उस दे अंदरों भी कोई राग जन्म लेंदा है। उस वक्त वो ऋषि जैसा होंदा है, पर जैसे चमकदी है बिजली छुप जाती है, बंद हो जाती है, फिर अंधेरे च कवि कई दफा आम मनुखा नालों भी थले जीवदा है। ये भी महसूस करते हैं। हो सकता है आम मनुख कुछ नैतिकता रखता होवे, किसी नैतिकता की पालना नहीं करता। समाज के तल ते जिहड़ी नैतिकता है, आम कवि शायर उसकी भी पालना नहीं करता। पता है क्यों? जिस वक्त तो बिजली चमकदी है, रोशनी आउंदी है, बड़ियां बुलंदियां नूं देख लैंदा है, बड़ियां उचाइयां नूं देख लैंदा है। और जदों झलक छुपदी है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ समाज ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ बड़ी ਉੱਚੀ है, बड़ी ਉੱਚੀ है। जैसे वो झलक उसदे कोल चली जाती है, समाज की नैतिकता भी उसनों बेमैनी दिसदी, अपनी जिंदगी भी बेमैनी दिसदी है। इस वास्ते अक्सर शायर लोग, कवि लोग शराब दे डुब जाते हैं। हैरानगी आती है, ऐसा क्यों? वो ऋषि होंदे ने किसे वक्त किसे पल, हर वक्त नहीं होंदे, पर जो हर वक्त जिसकी जिंदगी चानना बने होया है उसनों ऋषि आख्या गया। अवतारी पुरुष, बड़े बड़े संत जन, भगत जन, परमात्मा उन्हां दे अंदरों प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के। पर जिन्हां जिन्हां कवि शायरां दी जिंदगी च किसी वक्त बिजली चमकी, उस रोशनी च जो कुछ उन्हां कोल प्रगट होया है, बहुत कुछ लिया जा सकता है, उससे बड़ा कुछ लिया जा सकता है। इस तरह के कवि हर कौम दे च होए ने। 3 कवियां नूं मुशाबियत दिती जाती है, भाई साहब भाई वीर सिंह, डॉक्टर मुहम्मद इकबाल और राबिंद्र नाथ टैगोर। कहते ने बराबरी पद्धर दे ने, इक्को ही पद्धर दे ने। टैगोर संस्कृत, बंगाली ते ब्रिज भाषा हिंदी का कवि है। इकबाल उर्दू फारसी दे कवि ने। भाई साहब भाई वीर सिंह पंजाबी दे कवि ने। पर 3 वो कवि ने जो ऋषि होण दी अवस्था विच खड़े ने, उत्थे पैर रखे उन्होंने। यही कारण है कि उन्होंने दियां नज़मां, उन्होंने दियां रचनावां पुरानियां नहीं आउंदियां, नवीनता बनी हुई है, रस बने हुए है। क्योंकि आइयां उस तो ने जो नित नवा साहिब मेरा, नीत नवा सदा सदा दाता। इस तरह के कवि समदृष्ट हो जाते हैं। सुनिए मनिए, सुन रहे ते मन ने मन लिया, मन का हिस्सा बनेगा, नहीं ते नहीं, नहीं ते नहीं। सुने होया भावें सारी जिंदगी सुने, भावें सारी जिंदगी पाठ किया है, मन ने नहीं मनिया, वो मन का हिस्सा ही नहीं बनया। भावें एक पंक्ति जिंदगी नूं रोशन कर सकती है। इक्को ही शब्द सज्जन ठग ने सुनिया सी केवल गुरु नानक कोल, इक्को ही शब्द, अंदर दी सारी मैल धुल गई। पर वाकई सरोता, सरोता सिख बन सकता है, दूजा नहीं। सुनना है, सुनना है। कौन सुन सकता है, कौन सुनेगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। मैं सीखना चाहना, तो सीखण दी शैली सुनन तो आरंभ होवे। गुरु नूं सुनना है, गुरु सुनन दा विषय है। अगर ये सुन रहा है, वाकई सुन रहा है,
और इसदे मन ने सुन के मन लिया, जिन्नी सुन के मनिया हूं तिन बलहारे जाऊं। महाराज कहते मैं सदके जाना। सुन के मनिया तो मन का हिस्सा बन जाएगा, भरोसा बच जाएगा। भरोसा सुन के ही बनता है। हुण मैं अर्ज करा, उस तो विरोधी कुछ सुन के अगर वो मन लिया तो भरोसा टुट भी सकता है। 10 साल कथा सुन रहा सी, किसी को उस तो विपरीत सुन लिया, भरोसा टुट भी सकता है। 10 साल तो कीर्तन सुन रहा सी, गुरबाणी सुन रहा सी, ते सुनदिया मन के भरोसा बन गया, हाँ प्रभु है, भरोसा बन गया। ये भरोसा टुट सकता है। इस भरोसे नूं कोई डुलायमान कर सकता है, कोई प्रबल दलील नाल उस तो विपरीत गल आख देवे ते उसदा मन मन लवे, भरोसा टुट जाता है। बड़े बड़ियां दे भरोसे टुटदे मैं देखे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, भरोसे दा टुट जाता है। अगर किसी नूं सुन के भरोसा नहीं टुटिया, हो सकता है संसार दा कोई गहरा दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे। किस तरह रब नूं मनदा ही नहीं, किस तरह रब हो सकता है, परमात्मा किस तरह हो सकता है। इन्ना दुख, इन्ना दुख। भरोसा तोड़न वास्ते हजारां साधन बार मौजूद ने, भरोसा जोड़न वास्ते केवल सत्संग है और कुछ भी नहीं, केवल गुरु नूं सुनना। भरोसा टुट सकता है, पर बार बार सुनिया होया जो मनिया गया है, मन के जो भरोसा बने ते भरोसा बन के भावना बन गए, भक्ति बन गए। हुण इहदे तन दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकते हैं, भरोसा टुटेगा नहीं। हुण ये उबलदी देग दे च उबल सकता है, इहदा भरोसा नहीं टुटेगा, ये समदृष्ट हो जाएगा। ये जलाद दे च भी परमात्मा नूं देखेगा अगर किसी ने इसके टुकड़े कीते, ये उहदे विच भी परमात्मा नूं वेखेगा। जो दी से सो तेरा रूप करके हो जाएगा, समदृष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान समदृष्ट है, भगत समदृष्ट हो जाता है। समदृष्टि पहचान है कि इहदा सुनिया होया मन तो अगे लंघ के, भरोसे तो अगे लंघ के भावना बन गए, भगत है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और न कोई। भगत की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्यों? भगत भगवान जैसा है, भगत परमात्मा जैसा, भगत ईश्वर जैसा। समदृष्ट हो जाता है, उहदे लई सब कुछ ईश्वरमई हो जाता है। ये विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। तरह तरह के वितकरियां दे जीण वाले मनुख हो सकता है अजे भरोसे च भी नहीं जी रहे, अजे सुनी हुई बाणी मन का हिस्सा नहीं बनी, सरोते भी नहीं है। सुनिए मनिए मन कीता पाओ। भावना सुन के जिसदी बन गई है, सुन के जिसदा भरोसा बन गया, खतरे च है। भरोसा टूट भी सकता है, कोई तोड़ के रख देगा। और मैं इस जिंदगी दे अंदाजन 46-47 साल हो गए मैनू कथा कर दे, मैं चंगे चंगे बंदे देखे जिन्हां दे भरोसे टूट गए। गुरु तो भरोसे टूट गए, गुरुद्वारे तो भरोसे टूट गए, परमात्मा तो भरोसे टूट गए। कईयां दे ते बहुत छोटी छोटी गल ते भी टूटे। ये पिछले साल की गल, कैलीफोर्निया च एक सज्जन ने अखंड पाठ रखाया। और 3 दिन गुरुद्वारे बड़ी रौनक। 2 हाल सन, एक दे पाठ चलता रहा, एक दे कथा कीर्तन चलता रहा। 24 घंटे लंगर चलता रहा। गुरुद्वारे दे जो कुछ चाहिए सी उसने पहुंचाया और बहुत कुछ नवा बना दिता। उन्हें अथाह उत्थे दान किया।
बड़ी उसकी महिमा भी हुई। दास वख वख शहरां तो विचरदा होया जद फ्रीमाउंट पहुंचया, सुते सित उत्थे उसका मिलना हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक महीना हो गया सी। दास लॉस एंजलिस होर कई शहरां तो होके उत्थे पहुंचे। मैनू कहन लगा अपना ते हुण यकीन नहीं रह गया, गल खत्म। मैं कहा हद हो गई। $1000 उस दिन आके खर्च कीते न तुसी, भांडे नवे बनाए, कारपेट नवा तुसी बिछा दिता, इतनी रौनक, पाठियां नूं तुसी खुली माया दिते, लंगर तुसी वो चलाए जो ब्याह शादियां दा सिलसिला नहीं बनता। गल की हो गई? कह लगे मस्कीन जी आपां मुकदमे च हार गए, साडा निश्चा टुट गया, भरोसा ही टुट गया। इन्नी जिहियां गल्लां, इन्नी जिहियां गल्लां। जिसदा भरोसा बजे है खतरे च है, कोई तोड़ के रख सकता है। कोई दुख भरोसे नूं तोड़ के रख दे, कोई लेक्चरार, कोई कथाकार उस तो विपरीत गल कह के परमात्मा के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है, गुरु के भरोसे नूं तोड़ के रख सकता है। और भरोसे टूटते मैं देखे, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वो अपने आप नूं खतरे च समझे। जिन्ने चिर तक भरोसा भावना नहीं बनता, भक्ति नहीं बनता, भगत का भरोसा नहीं टूटता। भगत ते भगवान का रूप हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है। हुण जो है उसका भरोसा टुटे, उते आप परमात्मा वर्गा हो गया। हर वक्त महारस महानंद उसकी दुनिया च। वो गीत का रूप हो गया, संगीत का रूप हो गया, आनंद का रूप हो गया, ज्ञान का रूप हो गया और समदृष्ट हो गया। हुण जिथे तक वो वेखदा है परमात्मा नूं वेखदा है, और जिथे तक सुनदा है जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। हे प्रभु जितने पंछी पे बोल देन सब तेरी आवाज। हुण ते मैनूं इंज लगदा है ये भी तैनूं ही जपदे पैने, और कुछ नहीं। ये सारियां आवाजां हे प्रभु इहदे च भी तू है, ये सारे रूप इहदे च भी तू है। ये अवस्था बन गई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मैं समदृष्टि थोड़े सामने रखा तो समाप्ति करा समा हो गया। महाराज कहते कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेतो। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं अकाल उस्तत। हे प्रभु किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा सियाणा है। कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, तू अपनी चेतना नू चार कहंदे ने बड़े सुंदर, बड़े सोहणे सोहणे गुणां नाल संवारे शिंगारे। कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेतो, किधरे तू बिल्कुल मूड अचेत, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरानगी, हैरानगी। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत वेक, कहूं महादान होए के मांगे ओ धन दे तो। हे प्रभु कमाल दी गल, किधरे तो मंगता बनया है भिखारी, हाथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगदा भी। एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास हे चोजी पातशाह, किधरे तू दाता बनया, किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चोज ने। समदृष्टि। कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांगे ओ धन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन चित लेत हो। कहूं वेद रीत कहूं तांस्यम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैयां दे चों 2-4 मैं तुहाडे सामने रखां। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि 10वें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया।
बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं थोड़े सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनू कहन लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सीधे लफ्ज़। फिर मैं उन्होंने सुभाव कह दिता कि इतने कड़वे ना होंदे ते भारत विच हिंदू धर्म ते रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के। पाप ही परपक जाते धर्म दसक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मित्र जाति कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करना निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होंदी, गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। ये ती धन गुरु गोबिंद सिंह जी दी करामात, उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दी कुर्बानी, उन्हां दी तपस्या, उन्हां दी देन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि को नहीं देखा गया, क्योंकि असी सुनाया नहीं, असी समझाया नहीं। साहिब कहने, कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्या दल, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। हे प्रभु, किधरे तू महाकवि है, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहते गुरु गोबिंद सिंह। पर हे प्रभु, किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटकदी पई। कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। कहूं होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहूं होए के तुर्का पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु, किधरे तू हिंदू है, तू ही है और कोई नहीं, तू ही है। गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा है, पर हे प्रभु, किधरे तू मुल्ला है, तुर्क है, मुनारे ते चढ़ के बांग पिया देना। गुफा विच बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले, हे प्रभु तू ही है। मुनारे ते चढ़ के बांग देण वाले, हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाब होए पुराण को, पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान। लेत हो कहूं वेद रीत, कहूं तांसम विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु, मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है और कुछ नहीं, तू ही है। इन्हां सवैयां दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या कीती, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखदे हां तुहाडे सामने कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापर दे चली गई बिरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया। हे प्रभु, किधरे तू मधुर गीत गाना है ते मुरली वजाना, बांसुरी वजाना, धन गुरु गोबिंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार हो। किधरे आकार तेरा पुरुष दा बड़ा सोना नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार। पर हे प्रभु, किधरे तू नारी दी तरह है, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह है, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बाणी, विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दियां कहानियां तू कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, कोका पंडित ने कामसूत्र एक ग्रंथ लिखे। उस वक्त दे कुछ
ਨੈਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਕਾਮ ਸੂਤਰ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਦ ਕੇ ਚਾਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਨ ਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਸਰਾਮ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਜਨਮੇਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਜੇ ਸਰੋਵੇ ਬਿਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੰਕੀਰਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਤਾਨ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਖਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ, ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ।
भावें लैंदी पंजाबी मैं बोल सकदा, उस इलाके चो आया, पर हुण आया 50-51 साल हो गए, लड़खड़ा सकदा सी मैं, इस करके नहीं बोलिया। मैं किधरों लफ्ज़ां दा बेलफ्ज़ मैं कर सकदा, शुद्धि हो सकती है। तो हुण जिहड़ी पंजाबी मैं इस बोलिया, बोलियां ते बदलदियां, भाषावां बदलदियां ने। संस्कृत लोक भाषा नहीं रही सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लोक भाषा दे, ब्रिज भाषा दे, हिंदी दे अनुवाद किया उन्हां सारियां दा। सिख जगत दे बिखाद खड़ा हो गया है, ये गुरु गोबिंद सिंह दे बोल नहीं हो सकते। हुण कौन दसे? कोका पंडित ठीक कहंदा है, जे क्रोध दे उतार चढ़ाव नूं बयान किया जा सकता है, किधरे किधरे क्रोध मनुख नूं पशु बना दिंदा है, पागल कर दिंदा है। जे लोभ दे उत्ते व्याख्या की जा सकती है तो साहिब कहंदे ने लोभ ते मनुख नूं कूकर जैसा बना दिंदा है, कुत्ते जैसा बना दिंदा है। ज्यों कूकर हरकाया तावे दे दिस जाए, लोभी जंत न जाने पाखा बक सब खाए। भयो लोभ संग होरा, लोभ मनुख नूं हलकाया कुत्ता बना दिंदा है, हलका कुत्ता अपने मालक नूं भी वड्डण लग पैंदा है, पागल कुत्ता। लोभ ते पागल करके रख दिंदा है। सीमा तो वधिया होया लोभ, मनुख किसी नूं भी धोखा दे सकदा है। सीमा तो वधिया होया हंकार मनुख नूं जालम बना के रख दिंदा है। और सीमा तो वधिया होया काम मनुख नूं भ्रष्ट करके दुराचारी बना दिंदा है। अगर पुरुष है तो व्यभिचारी हो जाएगा, अगर स्त्री है तो गनका हो जाएगी, वैश्या हो जाएगी। गुस्ताखी मां इसका खुलासा किया है, इसकी व्याख्या की है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्ताद विच फरमान करते हैं, हे प्रभु कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत के नचैया, कहूं नर को आकारो, कहूं वेद बानी। किधरे ते तू वेदां दा पाठ पिया करदा है, ज्ञान दे धर्म ग्रंथ पिया पढ़दा है। कहूं कोक की कहानी, किधरे कोक शास्त्र पिया पढ़दा, काम सूत्र पिया पढ़दा, काम सूत्र दी विचार चल रही है। किधरे राम दे गीत ते किधरे काम दे गीत, पर तू ही है हे प्रभु, तू। कहूं वेदवानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा, कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार हो, कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया। किधरे गौवां पे चारदा है, श्री कृष्ण की तरफ इशारा, द्वापर दे सतगुरां दी सुरत चली गई। कहूं बेन के बजैया, कहूं धेन के चरैया, कहूं लाखन लवैया, कहूं सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, निर्दोखी निरंकार हो। हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप, इतने रूप। इस सवैये में थानू सुनांदा जावां ते सारी रात लंघ जाएगी, मुख्तसर मैं अर्ज कर समाप्ति करा। ये सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर देना। अज तक ते आखिया गया है परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है, पर जाप साहब विच महाराज कहंदे नमो अंधकारे नमो तोइज तेजे। हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तैनू नमस्कार करदा, पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता। मैं इसनू भी मत्था टेकदा, नमस्कार। इतनी समदृष्टि। जद भी किसी दा सुनिया होया भरोसा बनता है तो भरोसा भावना बन जाता है, भक्ति बन जाता है, वो समदृष्ट हो जाता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, समदृष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी उदी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट, ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट, वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है। सारियां नूं इक्को जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है। इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देता है, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी कि मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं छूंदी है।
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਅਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਮਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਖਰੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, 10 ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਮੰਨਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੁਣੀਏ ਮੰਨੀਏ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮੱਲਾਓ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਲ ਦੇ। ਮਾਗ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,